they are gonna have troubles with the oxygen. They are gonna have troubles with the breathing issue. That your life is gonna go away or you are gonna die. You should be afraid of Saturn. Okay, you should be. I'm warning you. हेलो एवरीवन, दिस इज मिर्ची दी हार्ट बीट पर्ल एंड आज हम लोग एस्ट्रोलॉजी साइंस की साइंस लेके आए हैं एंड मेरे साथ मौजूद है अनमोल कपूर जी। How are you? आई एम फाइन। बहुत बहुत स्वागत है आपका मिर्ची में। Thank you so काफी much. इंतजार कराया आपने यहाँ पे आने के लिए। टाइम की बात है. तो देखो बहुत सारे सवाल होते हैं, मेरे भी बहुत सारे सवाल हैं एस्ट्रोलॉजी को लेके, बट मैं ना यहाँ पे एज अ नूब बैठी हूँ आज कि मुझे ABC एस्ट्रोलॉजी की कुछ भी नहीं आती है। तो सबसे पहले तो आई वांट टू आस्क यू कि एस्ट्रोलॉजी है क्या? बर्थ चार्ट, सन साइन, मून साइन, कुंडली, ये वो क्या होता है ये सब कुछ? देखो, बहुत सारे लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं. जी. सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि एस्ट्रोलॉजी है क्या? यस राइट, व्हाई शुड वी बिलीव इन इट, व्हाट इज इट एंड हाउ इज इट इफेक्टिंग मी? राइट, मून वहाँ है, सूर्य वहाँ है, how is it affecting me, right? I don't care, sun rises, sun sets, everything is happening by its own, right? बिल्कुल. The universe is working by its own, but how is it affecting me? That's the question. यस Right? So I always tell them कि astrology कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक चीज का दूसरी चीज पर प्रभाव है. ओके Okay, the effect of one thing on another is astrology. अब ये आप छोटे लेवल पर भी देख सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, राइट नाउ वी आर इन द मिर्ची ऑफिस, राइट? यस सो मिर्ची ऑफिस का एक एनवायरनमेंट है. दैट एनवायरनमेंट इज इफेक्टिंग अस, राइट? आपका एक ऑरा है, आपका एक एनवायरनमेंट है. यू आर my environment right now, Yes. so you are affecting me right now. Yes. Similarly, I have a certain aura, I have certain energies, and I have a different kind of environment, and that is affecting you. बिल्कुल Right? Is it or is Yes, it not? it is, You agree definitely. on it? I चलो, agree. great. So अब होता क्या है, आप जिस भी environment में होते हैं वो आपको इफेक्ट कर देता है. सिंपल है, आप स्कूल में होते हैं आप अलग तरीके से बिहेव करते हैं, आप घर में होते हैं आप अलग तरीके से बिहेव करते हैं, आप फ्रेंड के घर में होते हैं आप अलग तरीके से बिहेव करते हैं. सो द बिहेवियर पैटर्न चेंजेस इन अकॉर्डेंस टू आवर एनवायरनमेंट. ओके Right? If I tell you to live in a slaughterhouse for 30 days, do you think you'll be the same person after it? आई डोंट थिंक सो. You won't be. If you can Google, you'll search it out. The people returning from the wars are not the same people. Right? The environment affects them. Yes. They see people dying, they see blood all around, they shot somebody who was innocent, right? So now they have a guilt feeling, and now they have a certain environment which affected them permanently. अब ये तो बड़े छोटे लेवल के एनवायरनमेंट की बात की मैंने, चलो घर है, ऑफिस है. अब हम थोड़े बड़े लेवल की एनवायरनमेंट की बात करते हैं. अर्थ है, अर्थ के पास चंद्र है, राइट? Yes. अर्थ इज हैविंग अ मून नियर इट, Yes. अर्थ इज हैविंग मार्स नियर इट. सो एनीथिंग इफेक्टिंग अर्थ विल बी इफेक्टिंग अस. ओके Will it be or will Yes, it not be? it will definitely. For example, we say we are not the body, we are the soul. Yes. We say that. Yes. But anything affecting the body affects you. यस इट अफेक्ट्स द सोल. It affects you, right? it does. If I say, okay, I'm not the body, I'm the soul, then burn the body. But if somebody will burn the body, we will feel the pain. Yeah. Right? So similarly, anything happening to the earth, anything happening in the environment of earth is affecting the earth, and that is affecting us. तो एक चीज का दूसरी चीज पर प्रभाव है. It is cause and effect. Okay, cause and effect तो साइंस में सबने पढ़ा ना. यस यस So वही है, because see, we are living in the Gen Z generation. Yeah. Everybody is, more interested into science rather than interested into stars and all those things. Yes. So cause and effect is astrology. बिल्कुल. तो बेसिकली ये लॉजिक है या कोई मैथ्स है या ये कोई दोनों है. साइंस है? देखो, cause and effect क्या है? Cause and effect works on the mathematics as well as on the logic, right? ओके How much cause is happening, number, degree, intensity. In what intensity the cause is happening, in that intensity we will get the effect. ओके So similar to the third law, for every Action. action there is equal and opposite Reaction. So similarly, that is a degree, that is the intensity of the mathematical intensity of the effect that you are gonna get. यस Now coming on the logic. लॉजिक इज वेरी सिंपल. आग है तो आग गर्म होगी. अब अगर आग को हाथ डालोगे तो हाथ जलेगा यस कि नहीं जलेगा? बिल्कुल. हम कहेंगे आग में हाथ डालेंगे, नहीं चलेगा. कोई एनीबडी हु कैन से कि मैं आग में हाथ डाल सकता हूं, मेरा हाथ नहीं चलेगा? नॉट पॉसिबल, राइट? सो वी हैव अ लॉजिक एंड इंटेंसिटी एज वेल. वी हैव नंबर्स. आप कितनी देर हाथ आग में रखोगे तो कितना जलेगा. So it's both. It's logic as well as mathematics. ओके ओके. तो अभी रिसेंटली ना वीनस रेट्रोगेट आया
इंस्टाग्राम, फेसबुक, इतनी रील्स चली कि पास्ट रिलेशनशिप्स वापस आ रही हैं, पुरानी दोस्तियां वापस आ रही हैं, पुराने रिश्ते जुड़ रहे हैं, टूटे हुए बेचारे जो दिल हैं वो जुड़ रहे हैं, आपको वो Very good. कांटेक्ट कर रहे हैं. Exactly. So for that we Yes. need to understand retrogression. Yeah. Retro means going back. Yes. Now what is Venus? Venus is a planet of love. Venus is a planet of relations. Venus is a planet of passion. So that is retro. That is Yes. coming back. So you will get a chance. You will get the opportunity to get something back. अब मैं सिर्फ Venus के लिए नहीं, मैं आपको further retrogression की जो prediction है वो अभी बता देता हूँ कि क्या होने वाला है. ध्यान से सुनना. So any planet, Yes. when it goes retrograde, it brings back the opportunity related to that particular planet. Okay. For example, when the Venus went retrograde, it gave you a chance कि आप अपने loved one को, अपने relationship को सुधार लो. See, we all do mistakes. Yes. We are humans, we do mistake, right? अब रिलेशनशिप में अगर सभी कहते रहेंगे कि मैं सही हूँ और लड़की भी कहती रहेगी कि मैं भी सही हूँ, तो दोनों तो सही नहीं हो सकते, राइट? दोनों में से एक के पास गलती है, लेकिन कोई मानता नहीं है. सो whenever the planet goes retrograde, it gives you a chance to retrospect. It gives you a chance to rethink over it. So when the Venus goes retrograde, it's gonna make you rethink about your love life, about your relationship, Okay. about the mistake you did in it. Okay. Okay, and if you are willing to improve yourself, then you're definitely gonna get back your wife, you're gonna get back your lover or anybody related to Venus. So when other planets go retrograde, for example, when the Saturn goes retrograde, Saturn की retrogression बड़ी common है और लोग बड़े डरते हैं, right? What is Saturn? Saturn is work. Yes. Saturn is karma. Okay. So it will again give you the opportunity to think about your karmic account. You might did something bad. Now it's gonna give you a chance to go back and correct it. ठीक है, अगर आप वापस जाकर के उस कर्मा को करेक्ट कर लोगे, Yes. तो Saturn might forgive you. वो कहते हैं ना सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए, उसको भूला नहीं कहते. तो उसको भूला नहीं कहते. तो वो जो भूला नहीं कहते हैं वो Saturn retrograde है. You get a chance to improve your own karma, to improve your own karmic account. You did something bad, now it's retrograde. You can retrospect about your karma and get it back, get it done. Okay, so that's how we use astrology. Now, whenever the Saturn goes retrograde, go and see what karma you did. Oh my God. ध्यान से When सुनो. Jupiter goes retrograde, Jupiter itself is the opportunity. Okay. It will bring back the opportunity you just lost. For example, आपको मौका मिला एक प्रॉपर्टी खरीदने का. Okay, let's suppose 1 जनवरी को हम नॉर्मल डेट्स पे स्टिक Normal करते dates हैं. पे, ठीक है. 1 जनवरी को आपको मौका मिला टू बाय अ प्रॉपर्टी. यू वेंट देयर, यू डिड ऑल द एफर्ट्स, इट डिडंट हैपन, एंड बाय 20th of January यू गॉट टू नो कि ये प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी. नाउ ऑन 1st of February जुपिटर रेट्रो हो गए. Okay. अब जब जुपिटर रेट्रो हो गए, ही इज गोना ब्रिंग बैक दैट अपॉर्चुनिटी विच यू जस्ट मिस्ड. सो व्हाटएवर यू जस्ट मिस्ड, यू आर गोना गेट अ चांस टू रीगेन इट. सो रेट्रोग्रेशन का सिर्फ इतना मतलब है कि आप वापस आते हो, 4 कदम पीछे जाते हो और उसी सिचुएशन को दोबारा से हैंडल करते हो, दोबारा से अंडरस्टैंड करते हो. अब जिन लोगों के वीनस रेट्रो में रिश्ते वापस आए हैं ना तो आप लोग वापस तो आ गए हो, बट देयर इज नो गारंटी कि ये टिकेगा. मैं पहले ही बता रहा हूं, देयर इज नो गारंटी, राइट? बिकॉज रेट्रोग्रेशन इज नॉट ट्रूली गोइंग बैक. It is just feeling like it's going back. For example, अब 2 ट्रेन्स हैं, अब मैं और आप हैं, मैं A ट्रेन में हूँ, आप B ट्रेन में हो, हम पैरेलल चल रहे हैं. ठीक है. मैं भी 100 किलोमीटर पर आवर पर हूँ, आप भी 100 किलोमीटर पर आवर पर हो. अब क्या होगा, मैं एकदम से अपनी स्पीड 150 कर लेता हूँ. आपको ऐसा लगेगा आप पीछे जा रहे हो. That is the feeling of retrogression. You will feel like you are going back, but are you going back? No. You are going at exact 100 kilometers per hour जहां पर आप जा रहे थे. So the retrogression is actually creating the illusion of things getting back to you. It is not truly getting back to you. तो जो अब सोच रहे थे ना कि अब तो मेरा एक्स वापस आ चुका है, ध्यान से सुन लो ये चीज को. So it's an illusion. Yes. So don't live in illusions. आपने समझाया अबाउट जुपिटर रेट्रोगेट. तो अब ना अचानक से माइंड में कि हाँ, जो चीजें मिस हुई थी फिर वो जब वापस आ गई तो क्यों आई वापस. You'll get a chance to re-implement the things. बिल्कुल. अब 29 मार्च आ रही है सर.
Yeah, the Saturn transit. यस सैटर्न ट्रांजिट हो रहा है, तो अब ना लोग डरते बहुत हैं सैटर्न से, ठीक है? क्यों बेचारे इतने स्वीट से हैं, क्यों डरते हैं उनसे? I'll tell you Saturn से लोग क्यों डरते हैं. Yes. लोग कर्म से डरते हैं. Saturn is a karma. People are afraid of karmas. देखो हर किसी को पता है उसने कौन से बी बो रखे हैं, ठीक है? हर किसी को पता है. You know what Yes. bad deeds you did. Yes. I know what bad deeds I do. यस Right? Everybody knows deep inside what they did, what they do. But they just don't accept it. They don't accept it publicly. They don't want to go through it again. But they know what they did, and that's why they are afraid of Saturn. Okay, because everybody knows that Saturn is gonna keep your karmic account. यस राइट शनि देव आपके जी। कार्मिक अकाउंट को संभालते हैं. आपने जो भी किया है यू आर गोना गेट इट बैक. ओके, अब मैं इसमें ना एक चीज बताता हूं. दूसरी चीज, लोग कर्म से भी डरते हैं. लोग किससे डरते हैं? टू पुट हार्ड वर्क. दे डोंट वांट टू वेक अप एट 4 AM. दे डोंट वांट टू गो टू देयर जॉब. हु वांट टू गो टू देयर जॉब? कौन? आप जाना चाहते हो 9 to 5? कौन जाना चाहेगा? सबको घर Nobody बैठे wants, बैठे पैसे आ जाए. right? Nobody knows, right? No, nobody wants to do that. So if you don't want to put hard work, if you don't want to, make sure that you are doing the right karma, then of course you should be afraid of Saturn. Okay, you should be. I'm warning you. Be afraid of Saturn if you are doing bad deeds and you are not ready to put hard work. यस Be afraid of Saturn. He's not gonna spare you. Maybe he's gonna spare you now, but after 10 years, 20 years, 30 years, इट इज गोइंग टू कम बैक. he's gonna come back. Okay? So, सबसे पहले तो कई सारे लोग हैं जो साढ़े साथी से मुक्त हो जाएंगे when it's gonna leave Aquarius. एंड कई सारे लोग हैं जिनकी साढ़े साथी स्टार्ट हो जाएगी. So, of course, it is going to enter Pisces, right? Now, Pisces is actually ruled by the Jupiter. ओके And remember, Jupiter is the Karaka for oxygen. ओके And Saturn is the Karaka for the polluted air. ओके So, सबसे पहली इफेक्ट जो आपको देखने को मिलेगा, people with the Pisces moon or people with the Pisces Jupiter, they are gonna have troubles with the oxygen. They are gonna have troubles with the breathing issues. Okay, so that is something which you might feel because Saturn is a bit of polluted air and it's gonna enter into your lungs. Okay, so oxygen कहीं ना कहीं restrict हो जाएगी. Now, what else is oxygen? Oxygen is life. या Can you live without oxygen? नो Nobody can live without oxygen. So the Saturn here is gonna restrict the oxygen, so it's gonna restrict the life as well. I'm not saying that your life is gonna go away or you're gonna die. No, nothing like that is gonna happen. But life taking away is simply means your jobs takes away your life. Do you agree? अग्री. Your karma takes away a part of your life. आप सुबह 9 बजे आते हो, 5 बजे आते हो, रोज यही पैटर्न रिपीट होता है एंड वन डे यू रियलाइज, ओ नो, आई एम 60 years old. So you are going to be indulged into a cycle of work because again, Pisces is your feet, Pisces is your walking, Pisces is a pattern. Pisces is something. See, if you see the sign of the Pisces, what is the sign of the Pisces? It's a fish. It's two fish. Two fish. Yes. Okay, it's two fish. And one fish is chasing another, Yes. then another is chasing another, then so ये circle चली जा रहा. Right, that's one thing. Second thing about Pisces is that these two fish, you know what they represent? What do they? So the fish going up is the spiritual fish, Okay. and the fish coming down is the material fish. Okay. Now the Saturn will give you the chance to choose one fish. You cannot choose both of the fish. Okay, you cannot live in a spirituality world and you cannot do the same deeds that you're going to do for the wealth, right? You cannot do both things at the same time. So it will give you a chance to become more spiritual. So be more spiritual at this time rather than being a lot of, a wealthy mindset or, gonna take material from somebody. Don't think like that. So that's one thing. Second thing, अभी 45 degrees के बीच में जब भी सैटर्न आता है तो उसकी साढ़े साथी स्टार्ट हो जाती है. सो Pisces people have to be aware. Moon Pisces, okay, Pisces moon, and Aries people also have to be a bit disciplined about Moon signs, according to moon signs. तो Pisces में जा रहे हैं Saturn, right? बाकी planets पे उनका क्या अफेक्ट होने वाला है? बाकी houses पे या बाकी planets पे? I always say one thing, which was told by our guru. He always used to say that little knowledge is dangerous. Yes. Right? So if I speak about certain things, that will be
very little knowledge, and a lot of people are gonna be stressed out about it. So I don't want them to be stressed about anything. So don't be stressed. Don't feel like that Saturn is gonna give you bad results. Saturn is not. One thing I'm gonna tell you: the easiest remedy to improve your Saturn and to make sure कि चाहे 7.5 ही चल रही हो, चाहे ढैया चल रहा हो, चाहे कुछ भी चल रहा हो, आपको शनि खराब रिजल्ट नहीं देंगे. Okay, I'm gonna tell you easiest remedy. Start waking up before sunrise. सूर्य उदय से 10 मिनट पहले उठना शुरू कर दो. और उस समय आप सड़क पर होने चाहिए जब सूर्य उदय हो रहा है. You should be outside your house when the sun is rising. When you start doing it, when you start morning walk, you will see that Saturn is not gonna give you bad results at all. That's the one remedy which is the best remedy of Saturn. ठीक है, तो डरने की जरूरत नहीं है. It is gonna enter Pisces, of course, but it's not gonna kill you. Okay, it's not gonna give you that okay, your life is gonna change. No, if you are gonna do your own karmas, yes, you are good. You say a word to somebody, you give a suggestion to somebody, and you are equally responsible for it. So when the Saturn is coming in the Pisces, the people with the dominating Saturn or with the dominating Pisces do not give free advices. लोगों को शौक होता है कि मैं ये तुम्हें एक बात कर देता हूँ, एक बता देता हूँ. अब मेरे पास लोग आते हैं, कहते हैं सर आप एस्ट्रोलॉजर हो, एक सलाह ही दे दो. नहीं, क्यों दे दो? Why should I? अगर मैं तुम्हें सलाह दूंगा तो मैं तुम्हारे कर्म में इक्वली भागीदार हो जाऊंगा. मुझे नहीं होना है. समझ रहे हो? तो हाँ, अच्छे कर्मों में तो मैं हो जाऊंगा. मैं आपको कहूँ हाँ आप रोज ना हनुमान चालीसा पढ़ लिया करो. अब आप हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, मैंने कहा है, तो वो मेरा कार्मिक अकाउंट इंप्रूव होगा. राइट? सो इफ यू आर गोना गिव सजेशंस, जस्ट गिव गुड सजेशंस. ठीक है? डू नॉट promote jealousy, do not promote breakups, do not promote anything that you don't feel like कि आपके ऊपर आए. तो अब किसी का ब्रेकअप मत करा देना, सुन लो. Don't. तो हम ना न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ठीक है? न्यूज़पेपर में ना कुछ साइंस आते हैं, दे आर अकॉर्डिंग टू आवर सन साइंस. कुछ प्रेडिक्शंस आती हैं. That is horoscope. या हॉरोस्कोप्स, ठीक है? उसके अंदर प्रेडिक्शंस आती हैं, लकी कलर ये है, लकी नंबर ये है, आज आपकी लव लाइफ में ये है, ये होने वाला है. अब लेकिन हमारा जो इंडियन एस्ट्रोलॉजी है, दैट समवेयर मूव्स अकॉर्डिंग टू द मून साइंस एज वेल. ठीक है? तो अब अगर मेरा सन साइन कह रहा है कि आज मेरी रेटिंग बहुत अच्छी होने वाली है, बट मेरा मून साइन कह रहा है ये जॉब अच्छी नहीं है, तुम्हारे को ये चेंज कर लेनी चाहिए, तो मैं किस पे बिलीव करूँ? ये दोनों तो आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर गए हैं. Pearl ji, this is a very good question, and a lot of people will be getting a lot of clarifications today on this. इस concept को कहते हैं horoscope misconception. So what is happening? Let's take the dates, normal dates. So from 13th of April to 13th of May, Aries में सूर्य होता है. We know it? Yes. इसका मतलब है कि 13 अप्रैल को जो बच्चे पैदा हुए और जो 13 मई को बच्चे पैदा हुए और उसके बीच में 30 दिनों में जितने भी बच्चे पैदा हुए सभी एरीज हैं. हाँ. मतलब सबकी लाइफ सेम होनी चाहिए. हाँ. मतलब पूरी दुनिया में सिर्फ 12 तरह के ही लोग होने चाहिए. Yes. राइट? मैं इन 30 दिनों में पैदा हुआ, फिर अगले 30 दिनों में टॉरस में लोग पैदा हुए, फिर उससे अगले 30 दिनों में जेमिनी में लोग पैदा हुए, उससे अगले 30 दिनों में कैंसर में लोग पैदा हुए. सो पूरा सर्कल कंप्लीट हुआ. दैट मीन्स दैट देयर शुड बी ओनली 12 काइंड ऑफ पीपल टेकिंग बर्थ ऑन दिस प्लैनेट. इज इट ट्रू? आर देयर ओनली 12 काइंड ऑफ पीपल? We see billions of people and every people is a different individual. Yeah. Is it? Yes. So how can you believe in the horoscope? Simple question. मैं अच्छा चलो मैं कहता हूँ ट्विन्स है. ठीक है. ट्विन्स टेक बर्थ. ठीक है? Yes. मैं पैदा हुआ, मेरे साथ एक ट्विन पैदा हुआ. हम दोनों 14 अप्रैल 15 अप्रैल को पैदा हुए जब एरीज में सूर्य चल रहे थे. तो क्या मेरा प्रोफेशन और मेरे ब्रदर का प्रोफेशन सेम होगा? नहीं. क्या मेरी लाइफ और उसकी लाइफ सेम होगी? क्या जिस दिन मेरा ब्रेकअप होगा उसी दिन उसका ब्रेकअप होगा? नहीं होगा ना. लाइफ इज इंडिविजुअलाइज्ड. यू आर सेइंग दैट पीपल टेकिंग बर्थ इन वन ज़ोडिएक साइन शेयर सेम ट्रेट्स. दे डोंट. ओके. नाउ in Vedic astrology, we do not give importance to the sun sign because sun is taking 30 days to complete one zodiac sign. We take moon because moon is taking only 2.5 days.
लेकिन अब आप लोगों का क्वेश्चन आएगा, इसका मतलब 2.5 दिन में पैदा होने वाले बच्चे सेम होने चाहिए। ठीक है, मैं इस हॉस्पिटल में पैदा हुआ, आप इस हॉस्पिटल में पैदा हुए, हम 1 दिन के डिफरेंस पे पैदा हुए, मैं कहता हूँ 1 मिनट के डिफरेंस पे पैदा हुए, सेम हो गए हम तो फिर। तो मून साइन तो सेम हो गया। हाँ। तो इसका मतलब तुम्हारी लाइफ और मेरी लाइफ सेम होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हाँ। क्यों नहीं होता है? बताओ। क्योंकि मून साइन भी ऐसे काम नहीं करता है। वी आर एक्चुअली वर्किंग ऑन डिग्रीज एंड ईच डिग्री इज रेफरिंग टू द ईच नक्षत्र। देयर इज नॉट वन टाइप ऑफ एरीज, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एरीज एंड इन दोज 3 टाइप्स ऑफ एरीज देयर आर 9 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरीज। ओके, एरीज में 3 नक्षत्र आते हैं, अश्विनी, भरनी, कृतिका। अश्विनी के 4 पदा हैं, भरनी के 4 पदा हैं, कृतिका के 4 पदा हैं। 9 padas are falling in one zodiac sign. Now, if I took birth in Ashwini Pada 1 and you took birth in Ashwini Pada 2, our lives will be totally different. ठीक है, हो आप भी Aries, but we are different. Yeah, we are Aries, but we are different. So that is why everybody is having a individualized thumbprint. हमारा फिंगरप्रिंट जैसी यूजलेस चीज प्रकृति ने हमको इंडिविजुअलाइज्ड दी है। इंडिविजुअलाइज्ड है, आपका थंबप्रिंट इंडिविजुअलाइज्ड है, राइट? वट एवर यू आर हैविंग राइट नाउ, ना इस पृथ्वी पर कोई हुआ है जिसका ये थंबप्रिंट था और ना ही कभी कोई होगा। सिमिलरली योर स्टार्स, योर प्लैनेट्स जो आपके हैं, ना तो कोई इस पृथ्वी पर हुआ है कि उसका था और ना ही कोई होगा कि उसका होगा। यू आर वेरी मच इंडिविजुअलाइज्ड। प्रकृति ने आपको बहुत इंडिविजुअलाइज्ड किया है। मूलांक और भाग्यांक। Okay, everybody is talking about numerology. Great. तो अब ऐसा होता है, हमारा मूलांक जैसे माय बर्थ डेट इज 29, ठीक है? 2 + 9 11, 1 + 1 2 नंबर वाले हमने गूगल पे सर्च किए कि 2 नंबर वालों के बारे में, तो ये कह रहे हैं। अब मैं भी 2 नंबर वाली हूँ, मेरा एक दोस्त भी 2 नंबर वाला है, और दोनों की लाइफ डिफरेंट है। हाँ, लेकिन फिर आ जाता है भाग्यांक, पूरी बर्थ डेट को कर दिया, प्लस दिस प्लस ये प्लस कर दो। अब वो मुझे कह रहा है 8, तो मैं 2 पे बिलीव करूं कि 8 पे बिलीव करूं? देखो, आई डोंट वांट टू से एनीथिंग अबाउट न्यूमरोलॉजी एज डायरेक्ट। मैं नहीं कहना चाहता कि, बट यस, देयर इज वन थिंग दैट आई वांट टू क्लैरिफाई। अभी इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था होरोस्कोप के बारे में। सूर्य एरीज में है तो क्या मैं एरीज हूँ? राइट। सो हाँ, सूर्य एरीज में है और अश्विनी में है तो आप अश्विनी हो, आप एरीज नहीं हो। नाउ फॉर अश्विनी यू आर वेरी गुड बिगिनर बट नॉट वेरी गुड फिनिशर। देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल लाइक दैट। ओके, सो द पॉइंट हियर इज सिमिलर टू दिस कॉन्सेप्ट। जो न्यूमरोलॉजी है दैट इज लाइक होरोस्कोप। ओके, दैट इज लाइक कि all the people in the world taking birth on 2nd will be same. Now all the people taking birth on every 2nd will be same, or all the people taking birth on 11 will also be same as the second one because 11 is also 2. Yeah. Right? तो अब 2 नंबर किसका? 2 नंबर मून का है। किसने डिसाइड किया जी 2 नंबर मून का है? मेरे को तो अभी तक ये नहीं पता। चलो, जिसने भी डिसाइड किया हो, आई एम ओके विद देम। बट व्हाट हैपेंस हियर इज we are not living according to the Georgian calendar. We are not living according to the dates which are considered as the dates. Okay, 1st January is not our new year. 13th April is our new year, right? When the sun enters into the Aries again, तो वो हमारा न्यू ईयर है। आज सब लोग जाकर सर्च करना कि जॉर्जियन कैलेंडर कब बना। ये बहुत लेटेस्ट है जॉर्जियन कैलेंडर। एस्ट्रोलॉजी उससे भी पहले एग्जिस्ट करती थी। ठीक है, अब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ है ना। भगवान कृष्ण का जन्म तो हर साल अलग डेट को आता है। दिवाली तो हर साल अलग डेट को आती है। भगवान राम का जन्म तो हर साल अलग डेट को आता है। आप वहां न्यूमरोलॉजी कैसे निकालोगे? नहीं निकाल सकते ना आप वहां पे न्यूमरोलॉजी, क्योंकि एक्चुअली वी आर वर्किंग विद तिथीज। तो न्यूमरोलॉजी आप लोग यूज कर रहे हो बिकॉज यू आर लुकिंग फॉर शॉर्टकट्स इन लाइफ। एंड रिमेंबर, नेवर टेक शॉर्टकट्स। बट आई अग्री टू वॉट यू सेड। लेकिन अब अगर मैंने सर्च किया, ठीक है, मैंने मूलांक सर्च कर लिया कि मेरा 2 नंबर है, ठीक है, वहां पे ना कुछ ट्रेट्स आए कि ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। अब मैं उन ट्रेट्स से तक रिलेट कर गई। साइकोलॉजी पढ़ी है? हाँ, थोड़ी बहुत। चलो देखो, साइकोलॉजी कहती है अगर आपकी तारीफ हो रही है तो आप उसको रिलेट कर लोगे। अगर आपकी तारीफ नहीं हो रही है तो आप कहोगे नहीं ऐसे नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई रीड योर चार्ट एंड आई से 5 नेगेटिव थिंग्स अबाउट यू ना, तो आप कहोगे यार बेकार एस्ट्रोलॉजर है यार, ये तो इसने तो मेरे बारे में इतना गलत बोल दिया। आप डॉक्टर के पास जाके ये करते हो, डॉक्टर आपको बता देगा हार्ट बस जाने ही वाला है, बेकार डॉक्टर, इसको आते ही कुछ नहीं, मैं तो ठीक हूँ, मैं तो अच्छा भला हूँ।
लेकिन अगर यही डॉक्टर आपको कहेगा यू आर वेरी हेल्दी, यू आर फिट, अरे सर टेंशन लेनी नहीं है, पर्ल डोंट वरी, वी विल हैव सी इट, आप कहोगे बहुत अच्छा है यार, ये तो बंदा ही बहुत बढ़िया। सो व्हेन यू गो एंड लुक अप द ट्रेट्स, इवन अबाउट होरोस्कोप, when you go and look up the traits, it usually shows you the good things, right? Leo is dominating, Leo is ruling, Leo is like a king. Okay? 1 number Moolank is like a king, 6 number Moolank is into artistic things. And then you are gonna relate whatever traits you read about anything. Example ले लो आपने, what zodiac sign are you? The sun sign? Yeah. It's Sagittarius. So she is a Sagittarius. Okay, Yes. great. अब आपको लगता है कि आप में सेजिटेरियस के ही ट्रेट्स होंगे, बाकी किसी के ट्रेट नहीं होंगे? बट मेरा मून साइन भी तो है एक। मैं कहता हूँ छोड़ दो अभी के लिए मून ठीक साइन, है। भूल जाओ, कोई और ट्रेट नहीं होंगे? हो सकता है। आर यू इमोशनल? या दैट इज नॉट अ ट्रेट ऑफ सेजिटेरियस. सेजिटेरियस इज रेडी टू फाइट. आर यू, इज योर मूलांक और भाग्यांक 2? माय मूलांक इज 2 एंड भाग्यांक इज 8। ठीक है, अब इन्होंने उसी टाइम रिलेट कर लिया, मैंने इनको इमोशंस के साथ रिलेट करा दिया कि चंद्र है तो आप इमोशनल हो गए. हाँ। ये दुनिया त्रिगुणा है. कौन से 3 गुण है जी? सत्व, रजस और तमस. ओके। सात्विक, राजसिक और तामसिक. और उसके कुछ हजारों सालों बाद विज्ञान विकसित हुआ, विज्ञान ने एटम को तोड़ा, उसमें देखा इसमें भी 3 ही चीजें हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो ये जो दुनिया है, ये जो वर्ल्ड है, यूनिवर्स है, त्रिगुणा है. Yes. ओके, समटाइम्स यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल सोल ऑन द प्लैनेट एंड समटाइम्स, okay, I don't want to say, sometimes you are the worst person. Yeah. Right? Sometimes you are like a king, sometimes you are like a beggar. So all the zodiacs, all the numbers, all the patterns of these traits, they are also having 3 parts of it. As you said earlier. Yeah. तो एरीज बहुत अच्छा भी है, एरीज बहुत बुरा भी है. ठीक है, एरीज राजसिक भी है, एरीज तामसिक भी है, एरीज सात्विक भी है. अब कौन सा पार्ट ऑफ एरीज, कौन से पार्ट ऑफ एरीज किस टाइम पर एक्टिवेटेड है, यही देखना हमारा काम है. ठीक है, तो आप साइकोलॉजिकली चीजों को रिलेट कर लेते हो कि ये चीज मेरे साथ घट रही है, मैं तो ऐसा ही हूं, क्योंकि हर कोई राजसिक भी है, हर कोई तामसिक भी है, हर कोई सात्विक भी है. तो आप रिलेट कर लेते हो अपने उस माइंड सेट से. आप जो ढूंढने जाते हो वो मिल जाता है. आप एक कोशिश करना, किसी दिन ना भूखे रहना, एक दिन उपवास करना, ठीक है, हैव अ फास्ट, एंड उसके बाद शाम को घर के बाहर निकलना और एक शहर का चक्कर लगा के आना. आपको रेस्टोरेंट्स ही रेस्टोरेंट्स दिखेंगे, आपको फूड ही फूड दिखेगा. ऐसी ऐसी जगह फूड दिखेगा जहां आप लोग को कभी जिंदगी में फूड देखा ही नहीं होगा आपने. क्यों? बिकॉज द फूड इज वट यू आर लुकिंग फॉर. सो वट एवर योर आईज आर सर्चिंग यू विल गेट. सोच समझकर इच्छा मांगना, क्योंकि इच्छाएं पूरी हो जाती हैं. बी अवेयर अबाउट वट यू आर विशिंग फॉर, because the wishes will come true. That is the desire, that is Rahu, the reason of you taking birth. We talked a lot about sun signs. Coming to the moon signs. Moon sign पता कैसे लगेगा? आपके डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ से. Okay. चंद्रमा रोज नक्षत्र बदलता है. What's your moon sign? Yes. So my moon sign is Virgo. Virgo. Very Virgo. nice. So what is Virgo? Virgo is a sweet little innocent girl. Thank you. That is not the true symbol of Virgo. The true symbol of Virgo is a boat that doesn't go anywhere. Ouch. This will give you a stagnant life. You will feel like कि आप एक ही रूटीन को फॉलो करी जा रहे हो, करी जा रहे हो, करी जा रहे हो. You are stagnant at a same place. कुछ नया हो ही नहीं रहा. यार मुझे तो ये करना था, मुझे वो करना था, and then suddenly you are thrown into a pattern of the day routine. Ouch. That is your moon which is predicting that. See, that is Virgo. Yes. तो इसी तरह से moon sign is obviously having more influence rather than the sun sign. What's your sun sign? It's Sagittarius. So Sagittarius and the moon. अब मैं किस पे क्या मैं बता विश्वास रहा करें हूँ. हम? Are you ready to fight? Of always. That is Sagittarius. That is the effect of Sagittarius. Are you ready to fight over a religion? No. That is the effect of Virgo. Oh. Okay? Because Sagittarius is naturally falling in the house of the religion, 9th house. If you are not ready to fight for the religion, you are not truly Sagittarius. Okay. For everybody, look for the partner or anybody with the moon sign. Don't look with the sun sign. And avoid looking for the partnerships and any kind of union, friendships, business partnership, lovership, anything that you want to do.
avoid 6th, 8th and 12th sign from yourself. In fact, also avoid second sign from yourself. Okay. For example, if you are Aries, avoid Taurus. Taurus. Okay. Okay, avoid Pisces, avoid Virgo, avoid Scorpio. वर्गो को That अवॉइड is- करने को बोल दिया आपने. Yeah, that is ये तो 6, गलत 8 हो and गया 12. मेरे साथ. नहीं, only Aries people will avoid you, na? Yes. And if you are gonna find somebody, try to find 1, 5 and 9. 1, 5 and 9. Okay, for example, for Aries, try to find Leo, try to find Sagittarius. Okay. Okay, you will always be more beneficial with them. And if you are gonna find 6, 8 or 12, you'll be having problems with it. मतलब देख लेना अब अपना. मतलब देख लेना, अब she is Virgo. So what kind of people she should find? She should be finding, she should not be finding Leo, Okay. not be finding Libra. Okay. Okay, now 6, 7, 8, 9, 10, 11, not Aquarius. Okay. 12, 1, not Aries. Okay. So now what you should find? Virgo से 6, 7, 8, 9, 10, you should be finding Capricorn. 11, 12, 1, 2, you should be finding Taurus. Capricorn और Taurus. अब आप देखोगे नेचुरली आपकी इन्हीं लोगों से ज्यादा बनेगी भी. Vacancies open for Capricorn and Taurus, guys. Please reach her out on her email address. अब लेकिन अब तो मेरे घर में जो भरे हुए हैं, जो एक्वेरियस हैं, मून That's fine. देखो, that is the pending karmas ना. You have to get rid of some pending karmas. तो लाइफ में एक कौन बस सी मिर्ची होनी चाहिए. opponent force होनी बहुत, मिर्ची होनी मिर्ची चाहिए, होनी मिर्ची चाहिए. होनी चाहिए. Everybody needs मिर्ची. in मिर्ची. life. मिर्ची, it's hot. Yes, it is definitely. तो ना कुछ मिथ्स और फैक्ट्स लोगों के बड़े होते हैं. यहाँ पे मिथ्स एंड फैक्ट्स इन द सेंस, बीमार हैं, मेडिकल हेल्प नहीं सीख करेंगे, एनु नजर लग गई, नजर उतारो. अरे मम्मी आ जाती है मिर्च लेके, अगेन मिर्ची लेके आ जाती है. देखो, बट वी नीड मेडिकल हेल्प. अब वायरल है, कितने दिन तक मम्मी नजरें उतारेंगी, जाके दवाई भी तो लेनी पड़ेगी. एग्जैक्टली. सी, इफ यू आर नॉट रेडी टू वर्क, यही तो है ना. देखो, भगवान भी कहते हैं पुरुषार्थ करो, अपना कार्य करो, कर्म करो, कर्म मत छोड़ो. अगर तुम ये सोचोगे कि मैं वॉर जीत जाऊंगा, मेरे सितारे बहुत अच्छे हैं, आई विल विन द वॉर, तो आप कमरे में बैठ जाओ, कुछ भी ना करो, तो आप वॉर जीत जाओगे? कभी भी नहीं जीतोगे. कर्म करना जरूरी है. आपके हाथ में परमात्मा ने इतनी शफा दी है, आपको मौका दिया है, आपको पांव दिए हैं कि आप डॉक्टर के पास चले जाओ. शायद प्लेनेट इसी चीज की वेट कर रहे हैं. Yes. कि आप डॉक्टर के पास जाओ, आपको दवाई मिले, आप ठीक हो जाओ. लोग अजीबोगरीब रेमेडीज करी जा रहे हैं. जैसे Okay, there are some paddhatis which will tell you to do those remedies, but you should be avoiding those remedies. ओके. कुछ भी जलाना, बहाना, दफनाना, कुएं में गिराना आपको नहीं करना चाहिए. ओके. सिंपल लॉजिक एंड फैक्ट है, कॉज एंड इफेक्ट है. अगर आप किसी चीज को जला दोगे, वो बर्न हो जाएगी, वो अवे हो जाएगी आपकी लाइफ से. अगर आप किसी चीज को दफना दोगे, वो तब तक बाहर नहीं आ सकती जब तक कोई निकाल लेना. और किसी ने निकाल ली तो फिर से वही चीज फिर से वही चीज, राइट. कुएं में गिरा दोगे तो कुएं में गई हुई चीज लॉस्ट हो जाती है. लॉस्ट हो जाती You'll not be able to find it again. नदी में बहा दोगे, वो भी चीज आपसे दूर हो जाएगी. So these are not the right kind of remedies that you should do, rather than bring lifestyle changes to your life. ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. देखो, पुराने जमाने को फॉलो करो. हम आज भी देख रहे हैं, अब सब पुराना जमाना वापस आ रहा है. लोग दोबारा पित्तल के बर्तन ला रहे हैं, लोग दोबारा Aesthetic है ये. Yeah, now they are calling it aesthetic. Aesthetic. That is coming back. Yes. And everything there was aligned to the planets. घर आए आदमी को कोल्ड ड्रिंक नहीं पिलाते थे, दूध पिलाते थे. उससे चंद्रमा ठीक हो जाता था, खुशियां बढ़ती थी, बरकत बढ़ती थी. ठीक है, नाले वाला पजामा पहनते सी, कमर कस के रखते सी. ठीक है, इसीलिए यहाँ पर साड़ी का रिवाज बना. नाले वाला पजामा पाना रेमेडी है, बेल्ट लगा के रखो, रेमेडी है. ठीक है, खुस्से वाली चप्पल पाओ, जड़ी चप्पल आवाज कर दी है, चूं 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 दी, वो रेमेडी है. अच्छा. ठीक है, नेगेटिव चीजें आपसे दूर रहती हैं. अब वो चप्पल क्यों पहनते थे जिसकी आवाज होती थी? क्योंकि रात को जब चलते थे तो कुछ नहीं पता था कहाँ से सांप आ जाएगा, कहाँ से कुछ आ जाएगा. सो व्हेन दे यूज्ड टू वॉक, दे यूज्ड टू मेक नॉइस, एंड बाय दैट नॉइस उनका रास्ता क्लियर होता था. जैसे रात को डिपर चला के चलिए, लाइट चला के चलिए गाड़ी. Yeah, it's just Basic like thing. light. It's just like light. अंधेरे तो में लाइट चाहिए. अंधेरे में लाइट चाहिए. सिर ढक के रखो. लोग पगड़ी बांधते थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, सबके रिवाज है सिर ढक के रखने का. एवरी रिलीजन इज एक्चुअली प्रमोटिंग सिर ढक के रखना. बिल्कुल. क्यों सिर ढक के रखना जी? बहुत सारी एनर्जी आपके यहाँ से एग्जॉस्ट हो जाती है. वो एडवर्टाइजमेंट देखी सबने, ग्लूकोन डी की, वो जो सन ऐसे करके सिप Yes, कर रहा yes, होता है, yes, एनर्जी इज गेटिंग अवे फ्रॉम यू. Yes. तो बहुत सारी एनर्जी आपके फालतू की चली जाती है. तो बड़े सारे लोग प्लान करते हैं लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं करते. ठीक है, आई प्लान टू ओपन अ बिजनेस बट आई वाज अनएबल टू इम्प्लीमेंट इट.
तो दैट लैक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन इज बिकॉज योर हेड इज टेकिंग अवे द एनर्जी. ओके, सो सिर ढक के रखिए, आपकी एनर्जी यहीं ट्रैप रहेगी. तो आप पुराने फॉलो करो जो भी पुराना हो रहा है. अब साइंस की होती है वो तो आप बता चुके हैं. मैं ज़ोडिएक साइन बोलूंगी. लव लाइफ के बारे में एक एक चीज बताने की. I'll give you advice. I'll give you advice. कैसे जाने वाली है. एडवाइस दूंगा मैं. Yes. एंड दिस इज वैलिड फॉर योर सन साइन, दिस इज वैलिड फॉर योर मून साइन, दिस इज वैलिड फॉर योर लग्न असेंडेंट. ओके, यस, गो ठीक है. एरीज. Aries, don't be so quick in a relationship. आप आंख झपकते ही रिलेशनशिप में आ जाते हो. Avoid doing that. टॉरस. Taurus, don't be rigid about somebody. Don't be rigid कि मुझे यही चाहिए, and don't be rigid about your decisions. जो कह दिया. Don't do that. जेमिनी. Don't be two-faced. Don't lie to your partner. They are eventually gonna find out that you lied. कैंसर. Don't be too emotional in a relationship because आपके emotions का फायदा उठा करके आपका फायदा उठा लिया जाएगा. लियो. Leo, don't be controlling. Okay, if you are gonna control something, that thing is gonna move away from. Virgo. Don't make somebody the part of your daily routine. Okay, whatever you do your job, you do your business. Don't involve your love life there. Okay. ये मैं ध्यान में रखूंगी जरा. लिब्रा. Libra, हर चीज बिजनेस नहीं होती है. हर चीज में मार्केट मत ढूंढिए. फ्लॉज हर किसी में है और वो आपको एक्सेप्ट करने पड़ेंगे. स्कॉर्पियो. Scorpio. So Scorpio is try to hide your emotions, try to hide your relationships, and remember, आपके जितना आप secretive रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा है. So don't overexpose yourself. I never expose myself. Sagittarius, don't be ready to fight and do not try to involve religious conversations with your partner because that will be the conflict part when you're gonna see. Capricorn is okay with relationships, but the problem with Capricorn is that they are always more demanding and usually इनका पहला relationship खराब हो जाता है. Okay. Aquarius, okay, so you are actually having a lot of things denied into your life, and due to that denied things into your life, the more you will run for something, that thing is going to move away from you. Last, Pisces. For Pisces, it is very simple to not be involved in आटे की चक्की. पिसते रहो. तो एक ही रिलेशनशिप के पास बार बार मत जाया करो. जो खत्म हो गया वो खत्म हो गया. ठीक है. थैंक यू सो मच अनमोल आज यहाँ पे जुड़ने के लिए. So that was astrology. साइंस की साइंस. Stay tuned to my G. It's Ciao. Bye. hot.